बीड विलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आज 7वां दिन है। 7वें दिन की शुरुआत हाफ मैराथन के साथ हुई। इस मैराथन में कई लोगों ने पार्टिसिपेट करके इस मैराथन को सक्सेसफुल बनाया। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप अपने अंतिम छोर की तरफ है। आज का मुकाबला कड़ा रहने वाला है। पैराग्लाइडर्स अपना पूरा दमखम आज दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के 7वें दिन की शुरुआत होते ही दुनिया के हर कोने से आए पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंचे। तो मैंने बहुत सारे कंपटीशन किए, बट पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में मेरा फर्स्ट कंपटीशन है। वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक साथ 100 पायलट जो पैराग्लाइडिंग करते हैं गैगल में, तो बहुत ही ज़्यादा होता है, रिस्की भी है, एडवेंचर हर दिन नया सीखने को मिलता है। तो बहुत से अच्छे अच्छे कंपटीटर है, वर्ल्ड क्लास पायलट आए हैं, जिनके साथ सीखने को कुछ नया मिल रहा है। तो टास्क शो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जितने पैराग्लाइडर पायलट हैं वो हाईली स्किल से कंप्लीटेड है और उनको डे बाय डे जो है नया नया टास्क दिया जाता है। चुनौतियों की बात आपने करी तो नेचुरल है, एडवेंचर है, इसमें हर वक्त चुनौतियां रहती है। यहाँ पे जो वेदर की कंडीशन है वो ख़राब होती नज़र आ रही है 2-3 दिन से, तो इसलिए इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा और कई तरह की प्रॉब्लम होती है, उन्हें डिलाइन करना और उनको टैकल करना वो उनके स्किल में शामिल होता है। जहां उन्हें पैराग्लाइडिंग मैनेजमेंट टीम की तरफ से खेल के नियमों के बारे में ब्रीफ किया। A few things that I need to say. We are in time, so we are still waiting for wind to come this direction, hopefully, so we can use this takeoff. Yesterday, as you know, there was a lot of noise about many things. First one was, let's go earlier. We are not coming earlier and we are not starting earlier.
regardless of the fact that it's very good and flyable, because me personally, taking care about collective safety, I think that this takeoff is much safer than the other one. The other one is fairly disorganized, and we already had 2 major incidents there. This was David Snowden on day 1, day 1, and then we had yesterday something, and it's happening every day. The problem is there that from time to time the wind is turning from the south, and then it's on the lower part. You cannot take off, the same as here, and you need to use only the top. And the top is absolutely not suitable for competition. We tried it in 2015. It's becoming very crowded, very pushy. People, it's getting slow, not too many places. So of course it's a gamble. I'm not the god, I'm just a meet director. Of course it's a gamble. It could be 10 times better up there. But my job is to have collective safety taken care of, which means for everyone. That's why I'm transferring this responsibility to you. You have enough time, today we are not in rush, to choose a good moment and to start from here. If it's totally impossible to start from here, for sure we will go up, but this would be the last option. We'll wait. After this briefing, we will deliver trackers. Then we will have a small meeting with the task committee and safety committee, and we will make a final decision which takeoff we're going to use today. Yes? Are you sure of 90.5? 90.3. Sorry, 90.3. Sorry, yeah, my handwriting, sorry. So, if the clouds are going lower around the takeoff, we have a little bigger cylinder than in the beginning. It's 2 kilometers. So, of course, it's not allowed to go into the cloud. We need to tug this turn point lower. It's a cylinder. It doesn't have to be here. You can tug some other place. So please take care that do not blindly follow the optimized line and be pushed into the cloud flying. You can tug this cylinder in many different places, not only here, although most likely fastest and easiest would be here, as long as it is not in the cloud. Johanna Katsut. Okay, so let's do it properly. The winner of the task yesterday is local pilot Amit Kumar. Bravo! That's him. Excellent flying, really impressive. ब्रीफिंग के बाद सभी पैराग्लाइडर्स ने मुकाबले की उड़ान भरी। अभी हमें जो है टेक ऑफ इंचार्ज का काम दिया गया हुआ है, तो अभी टेक ऑफ में जो भी मतलब पार्टिसिपेंट है उनको हेल्प करना होता है कि उनका जो ग्लाइडर जो है ओपन करना है, कोई हार्नेस सही से लगा हुआ है, स्पीड बैच जो है अटैच हुआ है नहीं हुआ है, तो सब पर मतलब वो हमारा काम है देखना मतलब। सुबह हमारी जो मूवमेंट है हेडक्वार्टर से वो 7:30 बजे पूरी टीम, हमारे जितने भी वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 7:30 बजे हेडक्वार्टर से मूव कर जाते हैं। तो हम अराउंड यहाँ 8 बजे पहुँचते हैं टेक ऑफ साइट पे। और हमारा सेटअप क्या है कि हमारा जो अपना टास्क बोर्ड और मैप और पूरी टीम जो है वो ये सेटअप तैयार करती है।
और ये देखती है सुबह आके कि हवा कहाँ से काम कर रही है, विंड कंडीशन किस वाले टेक ऑफ साइट पे जो है हम लोगों को फेवर करेगी टेक ऑफ करवाने में पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो उस पैच पे हम लोग ये अपना सेटअप्स तैयार करते हैं और हमारी जो टीम है वो इन सब चीज़ों में हमारी सहायता करती है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है और इससे पहले यहाँ प्री वर्ल्ड कप इवेंट्स हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ आयोजकों ने प्री वर्ल्ड कप आयोजन किए होंगे तो उनकी सक्षमता देखते हुए PWCA ने ये निर्णय लिया होगा कि वर्ल्ड कप का आयोजन भी यहाँ दिया जाए। और मुझे इस बात को देखकर बड़ी खुशी है कि क्योंकि मैं PWCA के प्रेसिडेंट से भी मिला और यहाँ के आयोजकों से भी एक दिन इन्वॉल्व रहा। मैंने ये पाया कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ये इवेंट रन करने में जो यहाँ के हमारे BPA के प्रेसिडेंट हैं और उनकी टीम, अनुराग शर्मा जी की टीम, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और जहाँ मेन इवेंट पैराग्लाइडिंग का हो रहा है उसके साथ मैं जान के बड़ा खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि मैराथन रेस यहाँ पे अरेंज की गई अर्ली मॉर्निंग, और उसके अलावा कल साइकिलिंग कंपटीशन भी यहाँ रखा गया है। और रात को यहाँ पे जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, पार्टिसिपेंट्स आए हैं और जो इंडियन कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब के लिए कल्चरल कार्निवाल भी रखा गया है। तो एक पूरा मैं कहता हूँ कंप्लीट बुफे एडवेंचर स्पोर्ट्स और हमारी हिमाचल की संस्कृति का इस आयोजन के माध्यम से दिया गया है, जो अपने में एक बहुत सराहनीय काम है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के आज के दिन के मुकाबले की उड़ान पैराग्लाइडर्स ने नए टास्क के साथ भर ली है। मुकाबला भी जारी है। वक्त एक छोटे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो,
की खामोशी भी रूहानी हो। दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। स्वागत है एक बार फिर आपका पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के आज के मुकाबले में। बीड़ बिलिंग की इन हसीन वादियों में पैराग्लाइडर की उड़ान अभी जारी है। देखते हैं कि किस तरह से पैराग्लाइडर्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद मौसम ने अपना रंग बदला, जिसके बाद पैराग्लाइडिंग मैनेजमेंट की टीम को टास्क रद्द करना पड़ा और आज एक बार फिर से मुकाबला खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। अभी जो मीट डायरेक्टर साहब ऑलरेडी फ्लाइंग कर चुके हैं वो हवा में है। क्लाउड बेस लो होने की वजह से और विजिबिलिटी कम होने की वजह से तुरंत को टास्क जो है हमारा आज का कैंसिल कर दिया गया है। Meet director saying the task is cancelled. हालांकि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का मुकाबला काफी रोमांचक चल रहा है। अभी तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में ऑस्टिन कॉक्स आगे चल रहे हैं। And also specific of this place that cloud base could be on multiple levels, and actually pilots able to fly between the clouds. So it is forbidden to fly inside the clouds, but between the clouds is possible. And someone able to gain advantage on surfing on a ridge of the cloud and gaining additional altitude. So someone could consider it as a not fair play, and reported it to director of the competitions, and he decided to first set the maximum altitude of 2,200, while due to these multiple levels of cloud bases, a lot of pilots were already upper this limit. And so this caused inconsequences and inequalities of in competitions, and he decided to stop the task and cancel the task. But yeah, we have one day more, and hope that we will have a successful task there. So like the previous days, we had a quite low cloud base and the view was not very great, and that just presented too many safety issues, and it was just too low to make a safe task, and our priority is to make it safe for everyone, so we cancelled to have everyone safe in goal and hope for a good task tomorrow.
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के आज के दिन का मुकाबला खराब मौसम के चलते पूरे टास्क को रद्द करना पड़ा। कल वर्ल्ड कप का आखिरी दिन है। कल आखिरी दिन में पैराग्लाइडर्स पूरा दमखम जीत की ओर दिखाएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि आज बीर कार्निवल में हिमाचल प्रदेश के नाटिक किंग कुलदीप शर्मा रंग जमाने आ रहे हैं। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के द्वारा ग्रेट इंडिया ट्रेल के सहयोग के साथ पैराग्लाइडिंग के साथ साथ हाफ मैराथन का भी आयोजन आज किया गया। हाफ मैराथन में देश के हर कोने से प्रतिभागी यहां पर पहुंचे और मैराथन में हिस्सा लिया। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के द्वारा ग्रैंड इंडिया ट्रेल के सहयोग से बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के साथ साथ एक मैराथन दौड़ का भी आज आयोजन किया गया। इस मैराथन में 3 तरह की दौड़ें शामिल रही, जिसमें 21 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 5 किलोमीटर की दौड़ें शामिल है। मैराथन में देश भर से आए महिला व पुरुष वर्ग ने भाग लिया। पाँच किलोमीटर की परिस्पर्धा थी। इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सालों के बाद रनिंग स्टार्ट की, पर बढ़िया रहा। मैं 10 के भागी हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं इसी रोड पे ऑलरेडी ट्रेन करती हूँ, तो खुद अपनी ट्रेल में रोड पे भागने में मज़ा आता है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1:10, 1:11 का टाइम, बट आई डिड बिफोर दैट, सो या। और मुझे अच्छा लगा। ये इवेंट होता है, हर बार होता है। मैं यहाँ काफ़ी बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और मैं विनर रहा हूँ यहाँ मैक्सिमम टाइम।
मैंने यहाँ 5 टाइम पार्टिसिपेट किया है, मैं 5 टाइम विन रहा हूँ यहाँ पे। जिला पर्यटक अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा, प्रवक्ता अंकित सूद, महासचिव चमेल दास सोनू, अभिषेक शर्मा, पंकज, उमेश, परवीन आदि भी उपस्थित रहे। पहले वर्ग 21 किलोमीटर में अनिल ठाकुर ने पहला स्थान प्राप्त किया, अनिल कुमार ने दूसरा स्थान और मलकीत कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में 21 किलोमीटर में सुनीता प्रथम स्थान पर, तेंजिन दूसरे स्थान पर और गार्गी तीसरे स्थान पर रही। 10 किलोमीटर के वर्ग में पुरुष वर्ग में अनीश चंदेल प्रथम स्थान पर, देशराज दूसरे स्थान पर और गुरविंदर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में 10 किलोमीटर में शीतल पहले स्थान पर और अनुजा रावत दूसरे स्थान पर रही। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सौजन्य से हो रहा है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने अपने इस सोच को किस तरह से धरातल पर उतारा है। तो चलिए सुनते हैं फाउंडर के मुख्य जवानी। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन BPA एक ऐसी संस्था है जो भारत में हवाई खेलों के प्रोत्साहन को प्रयासरत है। हमने 2013 में पहली बार प्री वर्ल्ड कप कराया था एक्सी का। 2015 में भारत में पहली बार विश्व कप BPA ने कराया था। 2016 में हमने एक्यूरेसी चैम्पियनशिप यहाँ पे जो 16 में कराई थी। 17 में हमने एक जो एक्सपीडिशन था एयरफोर्स के साथ, डेयर डेविल्स के नाम से, वो हमने 17 में यहाँ पे किया था। 18 में हमें एक्यूरेसी का नेशनल यहाँ पे किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद हमें गर्व है BPA के ऊपर और हिमाचल सरकार के सहयोग से पिछले वर्ष 2023 में हमने 2 प्री वर्ल्ड कप भारत में कराए हैं। अप्रैल में हमने एक्यूरेसी का प्री वर्ल्ड कप कराया है और नवंबर में हमने क्रॉस कंट्री का जो प्री वर्ल्ड कप कराया था। उसके बाद से ही हमने वर्ल्ड कप के लिए बिडिंग की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कई देशों ने इसके लिए बिडिंग की थी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन से, लेकिन हमें बहुत गर्व की बात है कि भारत में इस साल हम विश्व कप की मेज़बानी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी एसोसिएशन के एक एक मेंबर का। कुछ लोग तो रात को यहाँ पे 2 बजे सोते हैं और 5 बजे फिर उठ जाते हैं। जो सारे इवेंट को एक एक मेंबर जो हमारे परिवार है हमारा BPA का, जिन्होंने दिन रात, जो फील्ड स्टाफ के हैं, जो हमारे मार्शल्स हैं, जो टेक ऑफ पे हैं, लैंडिंग पे हैं, जो मीडिया, जो हमारा टेक्निकल सारा देख रहे हैं, आप लोग जो दिन रात सब मेहनत करके जो इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट बनाने में आपकी जो अहम भूमिका है, मैं सभी का तहे दिल से अपना धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पैराग्लाइडिंग में डेवलपमेंट जो है कोई 500% के करीब हो गई है। जो हम लोग पहले 10 लोग होते थे, अब वो 500 लोग जो हैं लोकल ही फ्लाइंग कर रहे हैं। तो पैराग्लाइडिंग में काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है।
लोकलों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है। लैंडिंग फील्ड जैसे सरकार ने हमें दी, टेक ऑफ साइट हमें सरकार ने दी। इसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी डेवलप हुई। पर अभी तक भी मेरे को ये लग रहा है कि पैराग्लाइडिंग जो है एक रेगुलर वे पे नहीं चल रही है। जैसे फॉरनर पायलट आते हैं तो उनके लिए रेस्क्यू और रिट्रीव का सिस्टम हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कर लें, पर फिर भी 1 या 2 एक्सीडेंट्स के कारण जो है कैजुअलिटीज़ वो हम नहीं चाहते कि हो। उसके लिए हम और कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी जल्दी जो है हम इसमें काम कर ही रहे हैं और हो जाएगा। मेरे को लगता है कि 1 या 2 साल में हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और डेवलप करेंगे। जिस समय पे बीपीए का गठन हुआ था या आज से अगर हम 10 साल पहले की मीडिया की बात करें तो आज के और 10 साल के पुराने मीडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। 10 साल पहले लगभग सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। उस टाइम बहुत मुश्किल हुआ करती थी इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट करने में, पर एट प्रेजेंट जो ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जो मोबाइल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो ये क्रांति आई है मीडिया में, उससे बड़ी जल्दी ये सब कुछ सर्कुलेट हो जाता है। पहले जब स्टार्टिंग में हम ये सब चीज़ें करते थे तो उस टाइम ये होता था कि अगर हम अभी प्रेस नोट इशू कर रहे हैं तो वो अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मिल पाता था कि क्या होने जा रहा है। जबकि आज के हालात ये हैं कि आज हम अभी कोई प्रेस नोट इशू करते हैं तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो सारा सर्कुलेट हो जाता है और लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाता है। आज हमने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अधिकारी और सदस्यों के साथ बातचीत की और इस बातचीत में पता चला कि किन कड़े प्रयासों से बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 को आयोजित करने में कड़ी मेहनत की है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट।